सबसे पहले मैं उन सब भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मीटिंग के पीछे हमारे लिए सारे प्रबंध करते हैं। And firstly, I'd like to thank all the brothers and sisters who arrange for these meetings behind the screens. मैं और आप उन भाई बहनों को देख नहीं पाते क्योंकि वो सामने काम नहीं करते। We can't, we are not aware of those brothers because we don't see them in the front lines. लेकिन ये मीटिंग इसीलिए चल रही है क्योंकि बहुत से भाई बहन पीछे लगकर इसकी मीटिंग का सारा इंतजाम करते हैं। But these meetings are going on very smoothly only because many brothers and sisters are working hard behind the screens. उसके साथ थोड़ा मुझे ये दुख भी होता है, और भी लोग हैं जो कर सकते हैं लेकिन वो आगे नहीं आते। At the same time, it also I also feel sad that there are others who can also contribute, but they do not. आपने कोई परिवार देखा है जहां पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप नहीं कहते भाई घर के काम में हाथ बटाओ? And have you seen in the families that like when the children grow up, they say that like let's contribute our part towards family. हाँ, ये हर परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी होती है। This is a responsibility of every member in the family. हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उनको कैसे सिखाते हैं? हम उनके हाथ में उसकी माँ प्लेट पकड़ा दी, जा बेटा जाके ये प्लेट अपने पापा को देख कर आ। And how when we handle our children the hand a plate and say that like go and give it to your father. क्योंकि ये तरीका होता है कि हर जन परिवार में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी को निभाए। Because this is how we train that like every person has a responsibility in the family. आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं जानता हूं कि कई जो जने आज इस मीटिंग में बैठे हैं वो सिर्फ एक रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं। Please don't take me wrongly, but I know that many of us sitting here in this meeting are sitting only हाँ, for just for the sake of it. उनकी एक आदत है या उनकी एक रीति है कि हमें संडे को चर्च में जाना है। They have this habit or like ritual that like we ought to go to church on Sunday. हाँ, ऐसे नॉमिनल चर्च में तो जा नहीं सकते तो मंडी में आते हैं। No, we can't go to a nominal church, so we'll come to the assembly. प्रभु दया करे, प्रभु ऐसे लोगों के जीवन से बात करे। May the Lord have mercy on them and speak to them. और मैं और आप सब प्रभु के घर में कुछ ना कुछ जरूर करें, And so that all of us may do something or the other in the Lord's home. जब हमारा भाई आदित्य भी वचन बांट रहा था, When our brother Aditya was sharing message today, तो सच में बात बड़ी अद्भुत लगी कि न जानते हुए वो लोगों ने पापी को उद्धारकर्ता से मिला दिया। one thing was very interesting to me that like unknowingly they brought a sinner to a savior. और बाइबल कहती है, अंग्रेजी में एक आयत है, वो कहती है he catches the crafty in their own craftiness, यानी वो जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं उन्हीं की चतुराई में उनको फंसा देता है। And one of the verses in Bible says that he catches the crafty in their own craftiness. हाँ, हमारा जो दोष लगाने वाला है वो भी आज भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। The accuser also does the same with us. वो हमें परमेश्वर के सामने लेके आता, देखो इसने यही पाप किया, आप इसको दंड दो। And he brings us in front of the Lord that like see this is the sin this person has committed, like punish him. लेकिन जो भाई ने वो आयत बताई ना, पहला यूहन्ना 2:1 में, लेकिन हमारा एक बिचवई है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। And like brother said in 1 John chapter 2 that like, but we have one mediator. और उसके लहू में कोई पाप, परमेश्वर हमारा पाप नहीं देख पाता। And in his blood the Lord does not see any sin in us. वो तो इसलिए लाता है कि हमें दंड दिया जाए, लेकिन हम वहां से माफी पाके जाते हैं। We are brought to be punished, but we leave being forgiven. जब मैं इस संदेश की तैयारी करने लगा, When I was preparing for this message, मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा था, बीच में प्रार्थना कर रहा था। I've been praying like in between last week. तो आज से 2-3 रात पहले अचानक मेरे मन में आया यूहन्ना 8 अध्याय व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी। And suddenly this story came in front of me, John chapter 8, story of the adulteress. और मैं उस संदेश को मैं पढ़ के उसको मैं उस पर तैयारी करने लगा। And I started preparing on that. और कुछ लिखता चला गया तो उसी के अंदर मेरा ध्यान गया, हमारा प्रभु पापियों का मित्र है। And when I started preparing for it, like within that, my focus shifted towards how the Lord is friends towards the sinner. और मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे ले गया दिखाने के लिए मित्रता के बारे में।
And I believe that like the Holy Spirit took me towards to show towards friendship. लेकिन अद्भुत बात यह है कि वही पूरा वो जो संदेश जो हमारे भाई ने दिया पूरा उस व्यभिचारिणी स्त्री के उस घटना के बारे में। And like the amazing thing is that like the Lord, Holy Spirit made sure that like our brother gives that message today about the adulterous woman. आज मैं आपसे एक मित्र के बारे में बात करना चाहता हूं। Today I want to talk to you about friends. एक ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती एक मिसाल है। Like such a friend that his friendship is amazing. ऐसा दोस्त जो दाऊद का दोस्त था, दाऊद उसके बारे में कहता है, अरे तेरा प्यार तो स्त्रियों के प्यार से भी ज्यादा था। And such a friend that David would say that like the love you have for me is much better than any love from a woman. हाँ, और मतलब इतना अद्भुत प्यार था उन दोनों दोस्तों के बीच में। They had such a great love between them. ऐसे सच बताऊं तो एक मेरा भी ऐसा ही दोस्त है। To be honest, I also had such a friend जिसका प्यार स्त्रियों के प्यार से मेरे लिए ज्यादा है। whose love for me is much more important than love from a woman. तो आइए आज हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका 23 अध्याय 15 से 18। पहला सैमुएल 23 अध्याय 15 से 18। Let's look into 1 Samuel chapter 13, 23 15 to 18। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण के खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढ दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। हाँ, हिंदी में लिखा है, और दाऊद वहीं जंगल में रह गया और जोनाथन अपने घर लौट गया। एक अंग्रेजी का अनुवाद है, दाऊद वुड्स में रह गया, यानी जंगल में रह गया, और जोनाथन अपने घर चला गया। In one of the translations, it's written that David stayed back in the woods and Jonathan left to his home. आइए प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं आराधना के संदेश के लिए। प्रभु, हमने प्रार्थना, प्रभु आप हमसे बात करें, और सच में प्रभु आपने एक नई रीति से हमसे बात की। कैसे प्रभु उन चतुरों की चतुराई को आपने मूर्खता में बदल दिया, आपने पापी को उद्धारकर्ता से मिला दिया, और प्रभु उस स्त्री के लिए उसका पूरा जीवन बदल गया। आपने दिखाया प्रभु कैसे वो पत्थर लिए हुए हम भी खड़े होते हैं, जबकि प्रभु हम पर पत्थर बरसने चाहिए, लेकिन आपने हम पर भी अपनी आशीष बरसाई है। प्रभु, मैं किसी हालत में उस स्त्री से जरा भी अच्छा नहीं हूं, बल्कि बहुत ज्यादा उससे भी बुरा हूं, क्योंकि मैं तो कई बार बड़ी गड़ी हुई धार्मिकता के साथ जीता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप में निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19 को पूरा कर, और विशेषकर मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे पहले मुझसे बात करें। मेरा ये संदेश किसी पर उंगली टिकाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए हो, और वो परिवर्तन मेरे जीवन से शुरू करें। आप मेरी आंखें खोलें कि मैं अपने पाप को पहले देख सकूं। समय के लिए आपका धन्यवाद। कनेक्टिविटी को बनाए रखें, मेरे भाई और मुझे एक मन रखें, अनुवाद में सहायता करें, सब बातों में अपने लोगों से बात करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल की दो आज्ञाओं में बाइबल की सारी व्यवस्था का निचोड़ है। The Bible can be summarized into 2 commandments. The law can be summarized into commandments. The law can be summarized into 2 commandments. और वो 2 आज्ञाएं प्रभु ने बताई। पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने तन मन शक्ति बुद्धि से प्यार करना। One of them is that the Lord said that you love your God with all your heart, mind and soul. और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। And the second is that love your neighbor as you love yourself. केवल एक ही व्यक्ति है बाइबल में जिसके बारे में कहा गया कि उसने अपने दोस्त से अपने समान प्रेम किया। So
There is only one person, एक ही व्यक्ति है बाइबल में जिसके बारे में कहा गया कि उसने अपने दोस्त से अपने समान प्रेम किया. There is only one person in the Bible about whom it is said that he loved his friend as much as he loved himself. आप पढ़िए पहला सैमुएल 18 एक आयत और फिर 3 आयत. Let's read 1 Samuel 18 verse 1 and 3. जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा. तीसरा पद, तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था. हाँ, NIV में लिखा है जॉनथन लव डेविड एज हिमसेल्फ. उस जॉनथन दाऊद को अपने समान प्यार करता था. NIV says that like he loved him as himself. और जॉनथन, केवल जॉनथन के बारे में पूरी बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया, वो उसका उदाहरण है. And it's only about Jonathan it is written in the Bible that he loved his neighbor as he loved himself. हाँ, सिवाय हमारे प्रभु को छोड़कर. Apart, excluding our Lord. जॉनथन का व्यक्तिगत चरित्र इतना सुंदर है, शायद कई जगह पे तो दाऊद से भी ज्यादा सुंदर. And we see how beautiful the character of Jonathan is, that in some instances is better than David. कहते हैं कि दाऊद का वो हम उम्र था. Sir, It is said that he was of the same age as David. It is said that he was of the same age as David. वो सॉल का बेटा था, He was son of Saul, जो इजराइल का पहला राजा था. who was the first king of Israel. दुष्ट राजा था. He was an evil king. लेकिन जॉनथन अपने बाप साउल से बिल्कुल उल्टा था. But Jonathan was completely different from his father. वो विश्वासियों के लिए एक उदाहरण है उसका जीवन. His life is an example for believers. वो प्रभु का योद्धा था. He was a warrior of the Lord. जब एक बार वो फिलिस्तीनियों से लड़ने के लिए गए और पूरा इजराइल डरा हुआ था. One time when they went in battle with the Philistines, और इसका बाप एक पेड़ के नीचे बस बैठा हुआ था. and everyone was afraid, and his father was just sitting under a tree. इसने निडरता से अपने जो हथियार उसका जो रखने वाला, जिसको अंग्रेजी में आर्मर बेयर कहते हैं, उसके साथ फिलिस्तीनियों पे हमला कर दिया. And he, without any fear, attacked along with his armor bearer. आप पढ़िए पहला सैमुएल 14, पहले 2 पढ़िए सॉल की निकम्मापन और फिर 6 पढ़िए इसकी निडरता. Let's read 1 Samuel 14 verse 2 and then 6. शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे. अच्छे है. 6 पद, तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतनारेत लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा. बस यहाँ तक. वो कहता है कितना निडर था, कहता है चल हम चलते हैं, उनसे भिड़ने चलते हैं. We see how fearless he is, that like he says, come, let us go. ना केवल वो निडर था बल्कि उसके पास रियल विश्वास था. Not only was he fearless, but he also had true faith. आप पढ़िए 6 आयत का दूसरा हिस्सा. Let's read the second part of verse 6. क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे. हाँ, उसको विश्वास था मेरा प्रभु विजय दे सकता है. And he knew that like my Lord can give me the victory. हाँ, वो मेरा प्रभु लोगों की, सैनिकों की संख्या के अनुसार जय नहीं देता, वो अपनी सामर्थ्य से विजय देता है. My Lord doesn't give victory according to the number of men, but he gives it according to his own strength. तो ना केवल निडर था, ना केवल उसके अंदर बड़ा विश्वास था, लेकिन वो प्रभु की इच्छा में चलता था. And not only was he fearless and faithful, but he would also walk in the will of the Lord. आप पढ़े 8 से 10, 14 अध्याय की 8 से 10 आयत. Let's read 14, 8 to 10. योनातन ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं. यदि वे हमसे यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास ना चढ़ें. परंतु यदि वे ये कहें, हमारे पास चढ़ाओ, तो हम ये जानकर चढ़ें कि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर देगा. हमारे लिए यही चिन्ह हो. हाँ, उसके पास निडरता थी, विश्वास था, लेकिन प्रभु की इच्छा में चलता था.
And he was very fearless, and he had the faith, but also he'd also walk in the will of God. अगर प्रभु हमें रोक देगा तो रुक जाएंगे, And if the Lord tells us to stop, we'll stop. और प्रभु अगर ऐसा करेगा तो हम जानेंगे प्रभु ने उनको हमारे हाथ में दे दिया। And if the Lord does this, then we'll know that the Lord had given them into our hands. हाँ, कई लोग निडर होते हैं, उनके पास विश्वास होता है, लेकिन प्रभु की इच्छा में नहीं चलते। Many are fearless, and they have the faith towards God, but they're not walking in the will of God. इसका उदाहरण सैमसन है। One of the examples is Samson. विश्वास था उसके पास, He had faith. हिम्मत भी थी, He was very courageous, लेकिन प्रभु की इच्छा में नहीं चलता था। but wouldn't walk in the will of God. तो ये आदमी, ना केवल उसके पास ये गुण थे, इसी गुण के द्वारा इसी अध्याय में आगे चल के बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रभु ने उनको बड़ी विजय दी। And with all these virtues in this man's character, through these, we see going forward that the Lord gave them a great victory. उस पहले घात में जहां पर जोनाथन और उसका जो साथ में जो हथियार वाला था, वो जब गया तो उन्होंने 20 लोगों को उन्होंने वही मार डाला। And in that first instance, when Jonathan and his armor bearer launched forward, they killed 20 people there itself. हाँ, आधे एकड़ में लड़ते हुए 20 लोगों को वही 2 जनों ने घात कर दिया। And 2 people killed 20 people fighting in a half an acre land. और फिर इजराइल के दो सैनिकों में इतनी हिम्मत आई, उन्होंने फिलिस्तीनियों को मार भगाया। And by this, the Israeli soldiers were so much encouraged that they made sure the Philistines ran away. वो सच में एक लीडर क्वालिटी वाला आदमी था। This man truly was a leader. और उसके सैनिक, हम पूरा नहीं देख पाएंगे, उसके सैनिक अफसर उसको प्यार करते थे, उसका आदर करते थे और उसके पीछे चलने के लिए तैयार थे। हम देखेंगे नहीं, आप 14 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। You can read in chapter 14 that his soldiers truly loved him, would follow him. बट इस सब के बावजूद वो बहुत दीन और ईमानदार आदमी था। And despite of all this, he was a very humble and honest man. और बचपन से उसको बताया गया था कि तू राजा का बेटा, तू अगला राजा होगा। And since childhood, he was told that you're the son of a king and you'll be the next king. और जैसे ही दाऊद प्रकट हुआ, वो पीछे हो गया। But as soon as David was revealed, he took a step back. बिल्कुल वैसे ही जैसे जब दाऊद का पुत्र प्रकट हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पीछे हो गया। Just like when the son of David was revealed, John the Baptist took a step back. ना तो जोनाथन में ना यूहन्ना में कहीं कोई अहंकार, कहीं कोई ईर्ष्या, कोई घमंड दिखता है। Neither Jonathan nor John the Baptist had any pride or any jealousy. ये चाहता था दाऊद, और वो चाहता था दाऊद के पुत्र के बारे में कि वो जब वो आगे होगा तो हम बहुत आनंदित हैं। And this Jonathan about David and John the Baptist about son of David wanted this, that way when they are in front, then we'll all be happy. हाँ, वो बढ़े, अवश्य बढ़े और हम अवश्य घटे। That they should increase and we should decrease. आप मुझे बताओ, जब आप नंबर 1 बन सकते हो तो क्या आप नंबर 2 बनना चुनोगे? You tell me, if you know that you can be the number 1, would you be okay with being number 2? पूरी फ्रीडम है आपके साथ, सब कुछ है कि आपको नंबर 1 लिया जाए, मतलब कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन आप खुद चुन लो, नहीं मैं नंबर 2 बनूंगा। You have all the facilities to be number 1, and will you choose on your own to be number 2? मैं तो कभी नहीं करूंगा। I'd never do that. मैं कहूंगा भाई सही बात है, बिल्कुल क्लियर, साफ है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। I'd say that it's very clear, there's nothing wrong in it. लेकिन जोनाथन बहुत आत्मिक आदमी था। But Jonathan was a very spiritual man. वो जानता था प्रभु की इच्छा है कि दाऊद राजा बने। He knew that it is the will of God that David would be the next king. दाऊद नंबर 1 हो, मैं नंबर 2। He knew that David is number 1 and I am number 2. बड़े पहला सैमुएल 23:17। Let's read 1 Samuel 23:17. 23:17 जी भाई। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। हाँ, वो कहता है मेरा पिता भी जानता है इस बात को। He says that even my father Saul knows this. वो स्वीकार नहीं करता, लेकिन जानता है। He doesn't accept it, but he knows this. लेकिन मैं प्रभु की इच्छा को आनंद से स्वीकार करता।
but I'll accept the will of Lord with joy. उसके इतनी महत्वाकांक्षा भरी हुई दुनिया में योनाथन में महत्वाकांक्षा नहीं थी. Jonathan did not have any materialistic desire towards the world. No. In a world full of so much ambition, Jonathan was not ambitious. हाँ, जी सर. और वो अपने जहां जो प्रभु ने उसको दिया, जहां प्रभु ने उसको रखा, जहां प्रभु उसको ले जा रहा है, उसमें जोनाथन पूरी तरह संतुष्ट था. Wherever the Lord had put him, whatever the Lord had given him, and wherever the Lord has taken him, Jonathan was completely satisfied with it. ज्यादातर विश्वासी इस समस्या की वजह से परेशान रहते हैं. Most of the believers are troubled by this problem. वो उससे खुश नहीं जो प्रभु ने उन्हें दिया है, They're not happy with what the Lord had given them, जहां प्रभु ने उन्हें रखा है, where the Lord had kept them, जहां प्रभु उन्हें ले जा रहा है. where the Lord is taking them. बाइबल कहती है भक्ति के साथ संतुष्टि बहुत बड़ा लाभ है. And the Bible says that being grateful along with obedience is very beneficial. हाँ, godliness with contentment. पॉल कहता है तिमुथी को, पहला तिमुथी 6 अध्याय में, godliness with contentment is great gain. बहुत बड़ा लाभ है. Paul says in 1 Timothy that being godliness with contentment is a great gain. और जोनाथन बड़े लाभ का जीवन जीता था. And Jonathan would live a life of great gain. क्या आदमी था ना. What a man he was, right? मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ. I'd want to be such a man. मेरे अंदर बड़ी हिम्मत हो. Firstly, to be very fearless. मेरे अंदर बड़ा विश्वास हो. To have great faith. मैं प्रभु की इच्छा में चलूं. And I walk in the will of God. मेरे अंदर अहंकार ना हो, जलन ना हो. I do not have any pride or any jealousy. मैं ऐसा जीवन जीऊं कि दाऊद का पुत्र बढ़े और मैं घटूं. That I live such a life that son of David would increase and I would decrease. और मैं महत्वाकांक्षी नहीं, लेकिन जो प्रभु ने दिया जा रखा बहुत संतुष्टि के साथ जियो. I may not be ambitious, but I'd be content with whatever the Lord has done. मैं कह सकूं प्रभु मैं जो हूं जहां हूं आपकी दया से हो. Or I truly say that Lord, whatever I am and wherever I am, it is by your mercy. और जैसा आपने मुझे रखा है वो मेरे लिए बेस्ट है. And however you have kept me, like it is the best for me. जोनाथन वो आदमी था. Jonathan was that man. और वो हिम्मत देता था. वो दाऊद को जंगल में हिम्मत देने आया, तू डर मत. He was an encourager. He came to the woods to encourage David. वो दोस्तों का दोस्त था. He was a friend of friends. बस उसमें एक घटी थी. There was one thing that was lacking. एक घटी थी. One thing that was lacking in him. जो उसे मात दे गई. Which put a scar on his character. वो अपने पिता के भावुक प्यार से अलग नहीं हो सका. He couldn't separate himself from the emotional love with his father. पहला सैमुएल 23:18 फिर से पढ़े. Let's read 1 Samuel 23:18. हाँ 18 जी भाई. तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी. तब दाऊद होरेश में रह गया और योनाथन अपने घर चला गया. हाँ, दाऊद जंगल में रह गया और जोनाथन अपने घर लौट. David stayed in the woods and Jonathan returned home. आपने कभी umbilical cord शब्द सुना है? umbilical cord. Have you heard this word umbilical cord? हाँ, हिंदी में कहते हैं गर्भनाल. हाँ, umbilical cord, गर्भनाल. Umbilical cord. एक umbilical गर्भनाल वो होती है जब बच्चा पैदा होता है तो एक गर्भनाल से वो अपनी माँ से जुड़ा होता है. And umbilical cord is that cord like through which a child when he is born is connected to his mother. हाँ, वो जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसी के द्वारा उसको सारा खाना पीना जो भी होता है वो सब उसी के द्वारा उसको पहुंचता है. When the child is in the womb, like all the food and nutrition that is provided, it reaches him through that cord. लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो उस गर्भनाल को काटना जरूरी होता है. उसको एकदम तुरंत काटते हैं. And like once the child is out, like it is a must that they cut it immediately. लेकिन कई लोग हैं उनकी भावनात्मक गर्भनाल अपने माँ बाप से अभी भी जुड़ी हुई है. But there are many for whom their emotional umbilical cord is still connected to their parents. हाँ, या किसी न किसी के साथ उनकी वो गर्भनाल जुड़ी हुई.
or someone or the other, they have this cord connected to. बस उसमें ये एक घटी थी, And this was one thing that Jonathan lacked. वो सच्चा था, He was truthful, अच्छा था, he was a good man, धर्मी था, he was a righteous man, पर प्रभु के शत्रु के साथ खड़ा था। but he was standing with the enemy of the Lord. सबसे बड़ा दुख है कि वो सत्य को जानता था पर सत्य को साथ खड़ा नहीं हो सका। The biggest tragedy is that he knew the truth, but he couldn't stand with it. वो मसीह की इच्छा को जानता था कि दाऊद ही राजा बनेगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन भर मसीह विरोधी के साथ खड़ा रहा। He knew that it is the will of God that David would be the next king, but all his life he stood next to the बहुत से enemy. लोग, आज बहुत से लोग हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं और दाऊद की संतान को बहुत प्यार करते हैं। And today there are many who are truthful, who are good, and who love the children of David, सन ऑफ डेविड, son of David, हाँ, जो प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, who love the Lord very much. और उसके बावजूद भी मसीह विरोधी के साथ खड़े हैं। And despite all that, they're still standing with the enemy. साउल वास्तव में मसीह विरोधी था क्योंकि वो मसीह की इच्छा का विरोध करता रहा। And Saul was truly antichrist because he was always against the image of Christ. प्रभु ने उसको इतना लंबा समय दिया, उन सालों में वो कभी अपने उस विरोध से पलटा नहीं, बस करता ही रहा, करता ही रहा। Lord gave him a lot of time, but he never turned him from his wicked ways. वो इतनी बर्बादी में चलता चला गया, लेकिन इतने सालों में लगभग 13 साल वो समझ ही नहीं पाया मैं क्या कर रहा हूँ। He kept falling, and for 13 years he didn't even understand what am I doing. आप मत सोचिए कि केवल एक ही मसीह विरोधी है। Don't think that there is only one antichrist. बाइबल में कई मसीह विरोधी हैं। There are many antichrists in the Bible. केन है, निम्रोद है, सॉल है, जूडस है। There is Cain, there is Nimrod, there is Saul, there is Judas. और आज भी मंडियों में और संसार में मसीह विरोधी हैं। And even today there are antichrists in the assemblies and the world. पहला यूहन्ना 2:18-19 पढ़िए, वो कहता है बहुत से मसीह विरोधी हैं। पहला यूहन्ना 2:18-19। Let's read 1 John chapter 2, 18 and 19. हाँ, 18-19 पद। जी भाई। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। बहुत से विरोधी हैं जो हमारा विरोध करते हैं। There are those people that who are against us. बस वो उनके अंदर एक बड़ा है कि हम वो बहुत बड़े बनने की बड़ी तीव्र इच्छा रखते हैं, जैसे मसीह विरोधी शैतान रखता है। And like the one thing in them is that they want to be someone big, like just like the devil. शैतान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? What was the greatest desire of the devil? मैं सबसे बड़ा बनूं। That I'd be the greatest. और जो बड़े बनने की इच्छा रखता है उसके अंदर मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है। And whoever has the desire to be great among men, they have the spirit of Antichrist. जब हमारे अंदर ये बात आती, यानी मसीह विरोधी आपके अंदर वो विचार को डाल रहा है। And when that thought comes into our hearts, it is the Antichrist putting it in us. क्या ऐसा नहीं हो सकता? But can it not be happen क्या this way? मसीह विरोधी विश्वासी में काम नहीं कर सकता? Can the Antichrist not work in the believer's life? अरे प्रभु ने नहीं कहा पतरस को, ए शैतान पीछे हट। Did not the Lord say to Peter that get behind me, Satan? तो ये मसीह विरोधी मसीह के लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। And these antichrists are running after the believers. वो प्रभु के पुलपिट का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। They are even misusing the pulpit of the Lord. वो वचन नहीं प्रचार करते, वो विरोध प्रचार करते हैं। They don't preach the word, they preach enmity. तो ये जोनाथन की सबसे बड़ी घटी थी कि वो जानने के बाद भी मसीह विरोधी के साथ खड़ा रहा। And this was the biggest shortcoming of Jonathan, that even after knowing, he stood with the Antichrist. कितने लोग जानते हैं कि ये जो लोग जिनके साथ हम खड़े हैं, ये प्रभु के काम के, प्रभु के लोगों के विरोधी हैं?
And how many of us know this, that these people that we are standing with, like, these are against the work of God? और उनसे पूछो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? And when you ask them, like, why are we, तो brother, why are साफ you दिख doing रहा this? है, साफ दिख रहा है कि ये आदमी प्रभु के घर का, प्रभु के काम का नुकसान कर रहा है, प्रभु के लोगों का नुकसान कर रहा है, तो आप उसके साथ क्यों खड़े हो? You can clearly see that this man is causing damage to the work of God and his house. Like, why are you standing with them again? भाई क्या करूं, इस भाई का मुझ पर बहुत एहसान है। Like, brother, what do I do? Like, I owe a lot to this brother. अरे सालों से मेरा दोस्त है, He's been a friend to me for over मेरा many years. रिश्तेदार है, मेरा He's रिश्तेदार my है, relative. हाँ मैं कैसे निकलूं? How can I come out? कितने सच्चे, अच्छे और ईमानदार विश्वासी हैं, How many, there are like so many good and truthful believers. वो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, They love the Lord and they want to do something for the Lord, लेकिन वो इस भावनात्मक गर्भनाल से चिपके हुए हैं। but they are stuck with this emotional umbilical cord. वो बार बार वो जो गर्भनाल है उन्हें पीछे खींच देती है। Like that cord pulls them again and again. कई बार उनके माँ बाप उनको पीछे खींच देते हैं, Many times their parents pull them back, कई बार अपने उनके बच्चे उनको पीछे खींच देते हैं। and sometimes their children pull them back. भाई बच्चों से प्यार करना तो मस्त है, Brother, like, it is a must that you love the माँ children. बाप बच्चों से प्यार करें, स्वाभाविक बात है, It's only natural that parents would love their children. पर कई तो अपने बच्चों को अनड्यू इतना, बस बच्चे ही सब कुछ है उनके लिए। But it's not that you love them to an extent that they are your everything. माँ बाप को आदर करना जरूरी है, It is a must that you respect your parents. पर कई लोग बस माँ बाप ही सब कुछ है। But like, it's not, it shouldn't be that your parents are everything for you. वो ये जो भाई है, चाहे वो कितना ही प्रभु के विरोध में खड़ा है, लेकिन भाई मैं क्या करूं, मैं उसके बहुत एहसान के पीछे दबी हुई हूँ। And this brother who's, no matter how much he's against the Lord, like, what do? I owe him a lot and I'm in pressure. जीवन भर उस गर्भनाल को काट नहीं पाते, And they cannot cut that cord throughout their life. एक बार इजराइल में बहुत बहुत गंदगी मचाई उन्होंने। One time they've done a very bad deed in Israel. उन्होंने निरंकुश व्यवहार किया, मतलब they behaved without restraint। They behaved without restraint. ये कब हुआ? When did this happen? जब मूसा ऊपर से वो टैबलेट्स, वो प्रभु की 10 आज्ञाएं लेके आ रहा था। When Moses was coming with those 10 commandments from the mountain. आप तो पढ़िए निर्गमन 32 अध्याय 27 और 28, निर्गमन 32 27 28। Let's read Exodus 32 27 28. 32 27 27 28। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवी ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। हाँ, मूसा ने कहा इतनी बुरी हालत है, अपनी तलवार लो और अपने लोगों को मारो, जितने लोगों को मार सकते हो। And the situation was so bad that Moses said that, like, take your sword and like kill as many as you can. वो कहता है हर कोई अपने भाई को पढ़ दे। 27 आयत, फिर से 27 आयत का दूसरा हिस्सा फिर से पढ़े, वो क्या कहता है? Let's read the second part of verse 27. अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। हाँ, अपने भाई को, संगी को, पड़ोसी को मार। Each killing his brother, friend and neighbor. लेवियों ने क्या किया? What did the Levites do? लेवियों ने अपने भाइयों को, संगियों को, जो पड़ोसी थे उन्हीं को घात किया। The Levites killed their own brothers, friends and neighbors. क्योंकि उन्हें प्रभु के घर की, प्रभु की पवित्रता की, प्रभु के आदर की चिंता थी। Because they were worried more about the house of the God and his purity and his honor. माँ बाप को प्यार करना जरूरी है, It is a must that you love your parents. लेकिन प्रभु कहता है अगर कोई अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करे तो मेरे योग्य नहीं है। But the Lord says that if someone loves his parents more than me, then he's not worthy of the Lord. कोई अपने पत्नी, बच्चों, परिवार को मुझसे ज्यादा प्यार करे, मेरे योग्य नहीं। If someone loves his wife and children more than me, then he's not worthy of my love.
यहाँ पर लेवियों ने दिखाया कि हम सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार करते हैं। Here, the Levites declared that we love the Lord the most. अंग्रेजी में कहते हैं इस स्वभाव को मिसप्लेस्ड लॉयल्टी, यानी आप वफादार हो लेकिन गलत जगह वफादार हो। We have this word in English, that misplaced loyalty, ऐसे मसीह विरोधी की तरफ वफादार हो, that you are loyal towards the Antichrist. और उन जोनाथन की तरह आप किसी तरह अपने माँ बाप के बहुत प्रेशर में जी रहे हो। And or like Jonathan, you're just living in a very much pressured life by your parents. मैं फिर कहता हूं, माँ बाप का आदर करना मस्ट है, ये प्रभु की आज्ञा है जिसके साथ आशीष जुड़ी है। And I say this again and very clearly, that it is a must that you must respect your parents. बाइबल कहती है केवल एक यही आज्ञा है जिसके साथ आशीष जुड़ी है। And Bible says that this is the only commandment which is tied with a blessing. लेकिन हम किस दबाव में आ जाते हैं? But like we come under this जब pressure. हमें प्रभु की वफादारी या माँ बाप का, हमें अरे मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया, मुझे प्यार किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, अब मैं उनका कैसे विरोध करूं? And we start thinking that like my parents brought me up, they got me educated, they did everything for me, like how can I oppose them? कुछ समय पहले भाई कह रहे थे माँ के आंसू में और बाप के बलिदान में बड़ा बड़ा दबाव होता है। Brother was saying some time back that there is a big pressure in the tears of a mother and the sacrifice of a father. हाँ, जब एलिशा को बुलाने आया, When Elijah came to call Elisha, तो एलिशा कहता मैं अपने घर में मिल के आता हूँ, तो एली ने कहा मुझसे क्या काम है तेरा, जा। and Elisha, when Elisha asked that I'll just meet my go home and come back, and Elijah said like what work do you have, go. बाइबल आपसे अपने माँ बाप का विरोध करने के लिए नहीं कह रही। Bible is not telling you that you oppose your parents. बाइबल आपको प्रभु के साथ खड़े होने के लिए कह रही है। Bible is asking you to stand with the Lord. हाँ, अब देखिए, अगर आप प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, if you do not give the Lord his first place, और अगर आप प्रभु को तन मन शक्ति बुद्धि से प्यार अगर आपकी इच्छा नहीं है, and if it is not your desire that you love the Lord with all your heart, mind and soul, तो आप मान लो कि आप अपने माँ बाप का आदर भी नहीं कर सकते। and like I know this, that you can't even respect your parents. अगर आप प्रभु के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते तो किसी भी दोस्त के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते। If you can't be faithful in your friendship towards the Lord, you can't keep it anywhere. अगर आप प्रभु के काम में वफादार नहीं हो तो अपनी नौकरी में कभी वफादार नहीं हो सकते। And if you're not faithful in the work of the Lord, then you can never be faithful in any work that you do. और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, and there is one more big problem. कई लोग नया जन्म पाए तो हैं, many of us are born again, लेकिन वो ऐसे कहना चाहिए नॉमिनल चर्चेस में या नॉमिनल नामधारी कलीसियाओं में मंडियों में बैठे हैं, but they are sitting in nominal churches जहां पर वचन में जीवन नहीं है, where there is no life in the word, जहां पर सिर्फ रीति रिवाज है, there is only rituals left there, जहां पर उनकी आत्मिक भूख प्यास नहीं मिटती, where their spiritual hunger is not उन्हें answered. पता है कि ये जो प्रचार कर रहा है ये प्रचार बाइबल के अनुसार नहीं है, they know that like what they are preaching there is not according to the Bible. उससे उनके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, there is no growth in their spiritual life, और वहां उनकी गर्भनाल जुड़ी हुई है, but their umbilical cord is tied to that place. अरे कैसे छोड़े, मेरे माँ बाप का की कलीसिया है, how do I leave, like my parents have been going to this church for a long मैं time, यही पैदा हुआ, यही मेरा बपतिस्मा हुआ है, I was born here and here is where I was baptized. अगर इसे छोड़ दिया तो विश्वासघात होगा, if I leave it here, it will be betrayal. आप क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, what stupidity you're talking. आप उस जगह खड़े हो जहां पर आपको प्रभु का सच्चा जीवित वचन मिले, and you're standing in a place where you get this true word of God, जहां पर आपकी बातें भूख प्यास मिटे, where your hunger is और आप जहां and पर thirst is quenched, और जहां पर आप प्रभु के लिए तैयार हो सको, where you can be prepared for the Lord. और बहुत इस बात को नहीं समझ पाते, जोनाथन भी नहीं समझ पाया, many cannot understand this, and even Jonathan couldn't.
ये सॉल का समय चला गया, अब दाऊद को प्रभु ने चुना था। The time of Saul has gone, and it is the time there for David. हाँ, नई दाख रस को नई मशकों में ही डालना पड़ेगा। You have to put the new wine in new jars. हाँ, जो नया दर्शन है, नया काम है जो प्रभु आपको दिखा रहा है, उसको आपको इस नए जीवन को इस नए तरीके से जीना पड़ेगा। This new vision that the Lord is giving you and this new life, you'll have to live it in a new way. क्या ऐसे कुछ लोग हैं, आप जानते हो कि वो प्रभु का विरोध करते हैं, फिर भी आप उनके साथ दोस्ती में बनाए बैठे हुए हो? There are some people, and you know that they are working against the work of God, and you're still sitting with them. देखिए, जहां तक आपको सुसमाचार देने की बात है, आपने सुसमाचार दे दिया उनको। Like, as far as your work it is to give the gospel to them, you have given it, उसके बाद वो आपके प्रभु का ठट्टा बना रहे हैं, and now they made a mockery of your God. वो अपमान कर रहे हैं प्रभु का, प्रभु के They're लोगों का, dishonoring your God and your people. फिर भी आप उनके साथ ही यहाँ करते जा रहे हो। Still you're going on giggling with them. अरे आप उनको कुछ चोट नहीं पहुंचा सकते, पर उनसे अलग तो हो सकते हो। You don't have to hurt them, but you can separate yourself. आप क्यों ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो प्रभु की इच्छा की जो विरोध में खड़े? Why are you standing with such people who are standing against God? एक बहुत दर्दनाक शब्द है, वो है काश। There is one very painful word, that is If only. If only. काश मैं ऐसा कर देता, If only I had done that. काश मैंने ये कदम उठा लिया होता, If only I had taken that step. काश मैं इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, If only I was not standing with these people. काश मैंने शादी के लिए अपने माँ बाप के लिए अपने प्रभु की बात मानी होती। If only I had obeyed my God instead of my parents for my marriage. तो हम सोचते हैं काश अगर जोनाथन दाऊद के साथ खड़ा होता। And then we think, if only Jonathan stood with David. ये जो हमने आयत पढ़ी, लिखा है कि दाऊद जंगल में रह गया और जोनाथन अपने घर को लौट गया। And this verse that we read, that David stayed in woods and Jonathan returned home. क्या इसका कारण एक ये भी था कि जोनाथन बड़ी कंफर्ट जोन में जीना चाहता था? Was it one of the reasons that like Jonathan wanted to stay in a comfort zone? हाँ, वो जो दाऊद के साथ इस तरह मारा भटका फिरना नहीं चाहता था। He did not want to live this miserable life with David. क्या ये भी एक कारण था? Was this also one of the reasons? पर अगर हम एक कल्पना करें, if we are to imagine, अगर जोनाथन जैसा आदमी दाऊद के साथ खड़ा हो जाता तो वो दाऊद के लिए फोर्स मल्टीप्लायर होता, दाऊद की ताकत दुगनी हो जाती। and if a man like Jonathan would have stood with David, then he would have been someone who would have multiplied David's strength. ऐसा समझदार, जिम्मेदार और वफादार आदमी दाऊद के साथ खड़ा होता, दाऊद कितना ताकतवर हो जाता, हम कल्पना करते हैं। We can only imagine that how it would have been if such an intelligent and responsible and faithful man would have stood with David. वो जो जोनाथन ने क्या कहा था, तू राजा होगा और मैं तेरे दूसरे नंबर पे मैं होऊंगा, ये कहा था ना जोनाथन ने। This is what Jonathan said, right? That you will be the king and I'll be next to you. पता है जोनाथन की जगह कौन खड़ा हुआ? You know who stood instead of Jonathan? जोआब, जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी था, who was a very self-centered man, जिसके अंदर अहंकार था, who had pride in him, जो हमेशा बदला अपने मन में रखता था, who always kept revenge on his heart. एक भाई कहता है, अंग्रेजी में कहता है, Jonathan was millions of times better than Joab. Jonathan जोआब से लाखों गुना अच्छा था। One brother says that Jonathan was a million times better than Joab. काश जोनाथन दाऊद के साथ खड़ा होता। If only Jonathan stood with David. बाइबल कहती है एक दोस्त अपने दोस्त के चेहरे को शार्पन करता है, चमकाता है। The Bible says that a friend sharpens his a friend's face. हाँ, a friend sharpens the countenance of his friend. Countenance. आप मुझे बताइए, जोनाथन वो आदमी होता जो दाऊद के मुंह पे कह सकता था तू ये गलत कर रहा है। Like you tell me, Jonathan would not Jonathan have been that man who would have told David that on his face that you're doing wrong? जब वो लड़ाई में नहीं जा रहा था और सोने चाहता तो दाऊद ओए चल, लड़ाई तू क्या कर रहा है यहाँ बैठा हुआ, लड़ाई में चल। When he was not going to the war and he would sleep, and he would have called him like, what are you doing? Come, let's go to the war. और शायद वो उस बड़े भयानक पाप से बच जाता।
and even he would have been spared from that terrible जब sin. दाऊद घमंड में इजरायलियों की गिनती करने लगा, जोनाथन कहता, अबे क्या कर रहा है, ये मत कर, प्रभु की इच्छा के विरोध में है। And when David in his pride was getting census for Israel, Jonathan would have said, what are you doing? Don't do this. This is against the will of God. जोआब ने भी कहा था उसको, उसने कहा था, राजा आप ऐसा मत करें। Even Joab said this, that like, the king, don't do this. पर जोनाथन की बात तो कुछ और ही होती। But if it was Jonathan, it would have been different. देखिए, कई लोग मंडली में ऐसे हैं, उन्हें प्रभु के काम से कोई लेना देना नहीं। There are many people in the assembly that they don't have nothing to do with the Lord's work. हाँ, उनके लिए एक रीति रिवाज है, For them, this is a वो ritual. अपने लिए जीना चाहते हैं, They just want to live for themselves. वो प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में खुशहाल रहे, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता रहे, उनका काम चलता रहे। So they just keep praying that like they have a comfortable life in this world, and Lord will keep on answering them. बड़े जलन के साथ, विरोध के साथ, ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ वो जीते हैं। And they live with a lot of enmity and jealousy. ऐसे लोगों से कोई आशा नहीं है, There is nothing expected from such people. लेकिन कुछ और लोग हैं, But there are some other. वो वरदान पाए हुए हैं, They have the blessing. वो ईमानदार हैं और दीन हैं, They're honest and humble. वो प्रभु से प्रेम करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, They love the Lord and they want to do something for the Lord. लेकिन उसके बाद भी अब तक उपयोगी नहीं है, And but still they are still not useful for the Lord. क्योंकि वो उस गर्भनाल के साथ जुड़े हुए हैं, Because they are stuck with that umbilical cord. वो अपने परिवार के अनड्यू प्रेशर में जीते हैं। They live in this undue pressure from their family. जब उसके परिवार और प्रभु के बीच में चुनाव आता है, तो वो ज्यादातर अपने परिवार को चुनते हैं। When there is a choice between the Lord and the family, like most of the time they choose their family. जो जिनको कुछ लेना देना नहीं है, उनसे इतना दर्द नहीं होता। And like people who do not have anything to do with the Lord, like we don't feel sad about them. लेकिन ऐसे लोग जो उपयोगी और प्रभु से प्रेम करते हैं और फिर भी इस तरह फंसे हुए हैं, उनसे दर्द होता है हमें। Like what causes pain is that such people who can be very much useful for the Lord and are not still useful. क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मन में शब्द आता है, काश ये प्रभु के लिए जीता। Because only for such people you get this phrase in your mind. अरे काश ये प्रभु के लिए खड़ा हो जाता, ये आग लगा दे। If only if he had stood for the Lord, he would have set fire. कितने जवान हैं, बड़े ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं। So many youngsters who are very strong and very zealous. वो हमारी तरह नहीं है, जो बुढ़े हो चुके हैं, जिनके घुटने टांगे, जो कुछ भी काम ठीक से काम नहीं करता। Like they're not like us old people, like whose joints have given up. वो कितना प्रभु के घर के लिए कर सकते हैं, how much they can do for the Lord's home. लेकिन वो प्रभु की देह को बनाने की जगह अपनी देह को बनाने में लगे। But they, instead of building the house, the body of the Christ, they are building their own body. उनके लिए शब्द आता है, काश। Like for them, this phrase comes in mind. If only काश तू प्रभु के लिए खड़ा हो जाए। If only you would have stood for the Lord. काश तू प्रभु के काम में लग जाए। If only you were involved in the काश ये भाई प्रभु के लिए एकदम ईमानदारी से कहे कि मैं प्रभु आपके लिए जीऊंगा। If only this brother had said that, Lord, I'll live an honest life for you. ये लोग एक बात नहीं समझते। These people, they don't understand one thing. देखिए, दाऊद तो राजा बनना ही था और बना। David had to be a king and he became a king. पर जोनाथन मसीह विरोधी के साथ युद्ध में मारा गया। But Jonathan was killed in the battle, in the war, along with the Antichrist. मुर्दकै ने एस्तर को कहा था, Mordecai said to Esther, एक बात जान ले, इजरायलियों को छुटकारा कहीं और से हो जाएगा। Know this, that the Israelites can be rescued somehow. पर तू और तेरा घराना मारा जाएगा। But you and your family will be cursed. 1856 में जॉन ग्रीनलीफ विटियर ने एक कविता लिखी। John Greenleaf Whittier wrote a poem in 1855. अब मैं इस जॉन ग्रीनलीफ विटियर को जानता भी नहीं हूं, ना ही मैंने कभी इसे पढ़ा है। I don't know him, nor I read much about him. पर उसकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मॉड मलन। But there is one famous poem, Maud Mullin. उस पूरी कविता के अंत में एक बात लिखी है। He writes one thing at the end of that poem. मैं उसको अंग्रेजी में कह के उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा।
उसमें लिखा है, हाँ उसमें लिखा है, ऑफ ऑल सैड वर्ड्स ऑफ टंग एंड पेन द सैडेस्ट आर दीज इट माइट हैव बीन. Of all sad words of tongue and pen, the saddest are these it might have been. या हिंदी में कहेंगे, जबान और कलम के सबसे दुखदाई शब्द है काश ऐसा होता. जबान और कलम के सबसे दुखदाई शब्द है काश ऐसा होता, काश मेरे परिवार में ऐसा होता, If only it had been this, it might have been like this in my family. काश मैंने ऐसा जीवन जिया होता. If only I had lived such life. ओ जोनाथन, काश तू प्रभु के लिए सही स्टैंड ले लेता. Oh dear Jonathan, if only you had taken the right stand for the Lord. काश तू उस भावनात्मक गर्भनाल को काट देता. If only you had cut that emotional umbilical cord. हम सब के साथ कुछ ना कुछ काश जुड़ा हुआ है. Like there is one if only stood with every one of us. कितनी बार हम कहते हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा कर दिया होता. How many times we say or think that like if only if it had happened this way. बड़ा दुख होता है हमें. It causes us great pain. काश प्रभु मैंने ऐसा ना किया होता. If only I had not done this, O Lord. यहाँ काश प्रभु मैंने ऐसा किया होता. Or if it is that like Lord, if I had done that. तो आपका सर्वशक्तिमान प्रभु जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सामर्थ्य है, आपसे एक बात कहता है. And so and your God who's sovereign over everything says this. वो कहता है तू मेरे पास पश्चाताप के साथ लौटा. You return to me with repentance. और मैं क्या करूंगा? And what will I do? पढ़िए योएल 2:25, जोएल 2:25. Let's read Joel 2:25. हाँ, योएल 2:25 जी भाई. जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात बड़े दल में जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा. मैं सब हानि भर दूंगा. He says that I'll completely fill them. मैं सब भर दूंगा. I'll completely fill them. यिर्मयाह 18:6 में कहता है, क्या इजराइल मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? And in Jeremiah 18:6 he says that like, can I not do the same with you, O Israel? वहां कुमार से बर्तन जो बन रहा था खराब हो गया, कुमार ने उसका एक नया बर्तन बना दिया. तो प्रभु कहता है क्या मैं तुझे फिर से नया बर्तन नहीं बना सकता? There when the potter was molding the clay, like the pot was ruined and he made another vessel out of it, and the Lord says that like, can I not do the same with you? ए भाई है बहन, क्या प्रभु तुझे फिर से खड़ा नहीं कर सकता? My dear brother and sister, do you not think the Lord can make you stand again? क्या तेरे घर में वो खुशहाली नहीं ला सकता? Can he not bring joy to your home again? प्रभु कुछ भी कर सकता है. The Lord can do anything. अरे प्रभु तो नया जीवन दे देता है, बिल्कुल नया जीवन दे देता है, नई सृष्टि बना देता है. And the Lord gives a new life and he completely makes a new creation. आप मत भूलो, दाऊद सबका सब लौटा ला. Don't forget that like David regained everything. बस एक कड़ा फैसला कर. Just only one decision away. प्रभु आर या पार. Either God or nothing. प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ. Lord, I want to live for you. मैं काश के दुख में नहीं जीना चाहता. I don't want to live in the regret of if. मैं आपके साथ जुड़कर जीना चाहता हूँ. I want to live joined to you. प्रभु आप मेरा सबका सब लौटा दे. Lord, you give me everything that I lost. आज मैं इस मेज के सामने आई हूँ. Today I have come in front of your table. मैं आपको अपने सामने रखता हूँ. आपके And सामने I put myself in front of you. प्रभु मुझ पे दया कर. Lord, have mercy on me. मैं सबका सब लौटा ला. That I may regain everything that I've lost. आइए प्रार्थना करें. Come, let us pray.